आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब. ओके, इन द प्रीवियस टॉपिक्स we derive the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor with the air is present between the plates. Okay, but today at the place of air we use a conducting slab in between the plates. Okay, let's start. For this, let us consider a capacitor having the two plates. Let us consider a capacitor having the two plates, plate 1 and plate 2. Okay, let it will be the plate 1 and it will be the plate 2. Okay, now we have to apply an electric field E naught, which is from left to right side as shown in this figure like that. So due to this electric field, the plate 1 become the positively charged and the plate 2 become the negatively charged like that. Okay, plus Q is the charge on the first plate and minus Q is the charge on the second plate. Similarly, sigma is the surface charge density of the first plate and minus sigma is the surface charge density of the second plate, and A is the area of both the plates. Let D is the separation. D is the separation between the plates. D is the separation between the plates. Okay, now we have to consider a conducting slab. We have to consider a conducting slab whose thickness is less than the separation between the plates. Okay, for let we have to consider a conducting slab which is placed in between the plates. Okay, the thickness of this plate is T and T is less than T. T is less than D. ये कंडीशन है हमारे पास. ओके, तो यहाँ पर ये स्पेस हमारे पास बच जाता है बेटा. ओके, नाउ वी नो दैट अ कंडक्टर हैव द लार्ज नंबर ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर्स. ओके, conductor have the large number of the free charge carriers and these free charge carriers are assembled on the ends of the conductor. Okay, now on the positive side of the capacitor, the negative charges are assembled on this side. Okay, and similarly positive charges are assembled on the negative face of the parallel plate capacitor, and this will take place till the electric field induced in the conducting slab will become equal to the applied electric field. और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा बेटा जब तक हमारे पास जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, हमारे पास जो ये इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, इट विल बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting slab E naught minus E induced is equal to 0. ये प्रोसेस हमारे पास हो जाता है बेटा. ठीक है, यहाँ तक हमारा ये पूरा टॉपिक आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, नाउ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज ऑल्सो 0. ओके, ये प्रोसेस, ये चीज जो ये पॉइंट हमारे पास आया हुआ है, ये पॉइंट हम लोग बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर भी हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं. तो आप लोगों को ये समझना है यहाँ पर कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कंडक्टिंग स्लैब के इन बिटवीन, it will become 0. Okay, now the external electric field is present only this region, like ये वाला रीजन और ये वाला रीजन. इस रीजन के अंदर सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है बेटा. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं यहाँ पर बात करता हूँ. ओके, सो वी नो दैट पोटेंशियल V is equal to E into electric field into डिस्टेंस, ये आ जाता है. या फिर हम लोग यहाँ पर D ले सकते हैं, यहाँ पे ये D आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V इंटू D, ये हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, बट हमारे पास जो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने E नोट अप्लाई किया हुआ है, इट इज नोट थ्रू आउट द डिस्टेंस D. ओके, इट इज प्रेजेंट ओनली दिस रीजन and this region there will be the no electric field. Okay, there will be the no electric field. So how we write the potential in between the plates? Let it be V is equal to
ई नोट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है हमारे पास, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन के अंदर प्रेजेंट है वो रीजन का हम लोग यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये वाला सिर्फ हमारे पास इस वाले रीजन के अंदर और इस वाले रीजन के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, टोटल रीजन का थिकनेस हम लोगों को पता है यहाँ पे सेपरेशन जो भी है प्लेट्स में, तो ये वाला रीजन हम लोग इस टोटल डी से अगर मैं ये वाला रीजन माइनस कर देता हूँ तो मुझको ये वाला रीजन यहाँ पर मिल जाता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी माइनस टी। ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी नो दैट फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट E naught is equal to sigma over epsilon naught. Okay, sigma over epsilon naught, but sigma is also equal to Q over A. Use this value here. Okay, use this value here. Then we know we get E naught is equal to Q over ए एप्सिलॉन। ओके, ये वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पर आ जाती है। अब जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई हुई है इसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं इसको, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाता है वी के लिए, वी इज इक्वल टू ई नोट के लिए हम लोग को वैल्यू पुट करनी है, ई नोट इज क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नोट इनटू डी माइनस, ये रिजल्ट आ जाता है बेटा। ओके, नाउ क्यू को हम लोग दूसरी साइड में लेकर चले जाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। V ओवर क्यू इज इक्वल टू डी ओवर d minus t over a epsilon naught। ओके, टेक द रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q ओवर v इज इक्वल टू a epsilon naught d minus t। we get this equation। okay, let it be equation number 3 and we know that q is equal to cv। from this equation find the value of c, we get c is equal to q over v। okay, so this is the equation number 4। on comparing equation 3rd and 4th we get, okay, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3rd और 4th को कंपेयर कर देते हैं then we get C is equal to A epsilon naught D minus T। okay, this is the capacity of a parallel plate capacitor with a conducting slab। okay, this is the capacity of a parallel plate capacitor with the conducting slab। okay, ये conducting slab के लिए हम लोगों ने कैपेसिटेंस की कैपेसिटी को फाइंड आउट कर लिया है एंड इट इज क्लियर दैट इट विल बी इंक्रीज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दिस फैक्टर विल बी d minus t will become small, so c will become high। okay, in this topic at the place of conducting slab we place the dielectric slab। okay, there are few assumptions। A is the area of the plates, D is the separation between the plates, and plus minus Q is the charge on each plate, plus minus sigma surface charge density, and T is the thickness of the dielectric slab which is placed in between the plates। okay, first we know that capacitance of a parallel plate capacitor with air A epsilon naught D, this is the capacity of a parallel plate capacitor when air is placed in between the plates। okay, ये हमारे पास कैपेसिटी आ जाती है हमारे पास जब एयर इन बिटवीन द प्लेट्स हम लोग प्लेस कर देते हैं बेटा, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमारे पास assumptions हो चुकी हैं। नाउ वी हैव टू प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब in between the plates। T is the thickness of this slab। okay,
T is the thickness of this slab. Then what happened? Polarization of this dielectric slab will be take place. यहाँ पर polarization हमारे पास charges की जो है it will be start. Okay, then all the negative charges are assembled on this side like that. यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है. बट इन केस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक these the electric field produced by these charges, the electric field produced by these charges is not equal to the external electric field. ओके, ये चीज हम लोग पोलराइजेशन वाले टॉपिक में भी हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक विच इज नॉट इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो देयर विल बी द सम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब. यहां पर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की रहेगी बेटा. तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ओके, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसके लिए क्या वैल्यू आ जाती है, विच इज इक्वल टू ई नेट भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, या फिर इट इज द रिड्यूस वैल्यू. ओके, रिड्यूस वैल्यू से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई इंड्यूस. ये हमारे पास यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन आ जाएगी बेटा. ओके, बट वी नो दैट K is equal to dielectric constant K is equal to applied electric field to the reduced value of the electric field. ये आ जाता है बेटा. एक इक्वेशन हम लोगों को ये मिल जाती है यहाँ पर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स. प्लेट्स में जो भी हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा. ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अगेन वी नो दैट V इज इक्वल टू E इंटू डी. ये इक्वेशन होती है यहाँ पर, ठीक है. बट इन दिस रीजन इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एंड दिस रीजन. ये जो हमारे पास रीजन बचा हुआ है बेटा प्लेट्स और जो पैरेलल प्लेट्स है और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस वाले रीजन में भी, और यहाँ पर भी हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट है ई नोट. बट in this region the E net will be present and which is in the same direction as the applied electric field. यहाँ वाले रीजन में और इन वाले रीजन में हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. इन दिस रीजन दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट. ओके, एंड इन दिस रीजन दिस इज द इंड्यूस्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट. सो हाउ वी राइट द पोटेंशियल? ओके, सो वी राइट द पोटेंशियल V इज इक्वल टू E नोट. E नोट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रीजन D माइनस T. ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा. जो हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है दिस इज प्रेजेंट इन दिस रीजन. ओके, प्लस E नेट इंटू T. E नेट जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए हमारे पास थिकनेस ये वाला आ जाता है बेटा, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग ई नेट की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देते हैं बेटा. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट. ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पर नेक्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. तो यहाँ से हम लोगों को देखना है इक्वेशन 2 और 3. तो यहाँ पर V के लिए रिजल्ट आ जाएगा V इज इक्वल टू E नोट D माइनस T प्लस E नेट की वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 से निकालनी है, और जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा E नोट बाय K इंटू T. ये वाली इक्वेशन बन जाएगी बेटा.
अब यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ई की वैल्यू आ रही है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी कॉमन. ओके, taking E common, and after taking E naught common from this equation, then we get V is equal to E naught into D minus T plus T over K. Okay, and but we know that E naught is equal to Q over A epsilon naught. ई नोट के लिए जो वैल्यू होती है बेटा हमारे पास वो हो जाती है क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नोट, और ये जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है ई नोट के लिए, ये वैल्यू हम लोग इस वाली इक्वेशन में, अबव इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, v इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नोट टी माइनस टी प्लस टी ओवर, वी गेट द दिस रिजल्ट. ओके, नाउ v ओवर क्यू इज इक्वल टू d minus t plus t over k over a epsilon naught. Okay, but we know that c is equal to q over v. ओके, ये हमारे पास c के लिए रिजल्ट आ जाता है. तो हम लोग इसको c के लिए सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास जो यहाँ से फर्दर रिजल्ट बचेगा बेटा, हमारे पास रिमेनिंग जो रिजल्ट आ जाता है, इट विल बी इक्वल टू c is equal to a epsilon naught over d minus t plus t over k. This is the capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. Dielectric slab के हमारे पास जो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी आ जाती है बेटा, इट इज इक्वल टू c is equal to a epsilon naught over d minus t प्लस टी ओवर के. ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाती है. ओके, नाउ स्पेशल केस आ जाता है हमारे पास इफ d इज इक्वल टू, इफ d और इफ t इज इक्वल टू d. अगर हमारे पास जो प्लेट्स के इन बिटवीन वाला जो स्पेस है, अगर हम लोग उसको कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा. सी के लिए रिजल्ट बच जाता है हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस डी ओवर के. ओके, ये वाला रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग रह जाता है. डी से टी कैंसिल और सी हमारे पास आ जाता है ए एप्सिलॉन नॉट डी, और ये के हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं बेटा. ठीक है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक slab, but C naught is equal to A epsilon naught D. This is the capacity of a parallel plate capacitor with air. ओके, एयर के साथ अगर हम लोग ये कंपेयर करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है C is equal to K and this factor is equal to C naught. So the capacity of a parallel plate capacitor with dielectric is become equal to K times the capacity of a capacitor with air. Okay.